This is Hitesh Jitwani. Today we are going to learn special contract, two different words, indemnity and guarantee. This will be helpful for the business law students, those who are appearing for the exams, and especially these words are almost same, but however there is a difference. So let us begin the difference between the indemnity and guarantee. In simple words, अगर हम बात करें indemnity जो है that is a relationship between two people like debtor creditor हो गए या तो फिर seller and buyer हो गए. So that relationship creates between only two people. However, guarantee, here there are the three parties, three different parties are connected, and यहाँ पे गारंटी जो है दैट शुड बी ओनली अप्लाइड व्हेन प्रिंसिपल डेब्टर इज इन डिफॉल्ट ऑफ पेइंग. मतलब जो प्रिंसिपल डेब्टर जो है वो पे नहीं कर पाएगा तो ही गारंटर जो श्योरिटी होगा दैट पर्सन हैज टू पे. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. So here there is an example of indemnity. So first let us see the characters. The character A is a daughter, the character B is a father, and character C is a salesman. That person is selling the phone. Now A wants to buy the phone from C. यहाँ पे A जो है she wants to buy the phone from the seller from the C. Here the relationship is between A and C. अगर आप relation देखने जाओ तो here relationship is between A and C. मतलब यहाँ पे जो A person है that is buyer and C is the seller. So the relation should be could be anything, like it could be debtor and creditor as well. However, B, the father of A, जो ये character है, B character है, that is a father of A, takes the responsibility to pay the amount rupees 5,000 to C. Now यहाँ पे B जो है he is taking responsibility that if she buys the phone that he would pay 5,000 rupees to C. मतलब जो 5,000 रुपए होंगे फोन के that B would pay to A. मतलब सेलर को जो है वो A पे कर देंगे. So in this case A will not be considered debtor as A will be eliminated from the liability. So यहाँ पे अगर हम देखने जाएं in the concept of indemnity, A does not have to pay anything because A का जो पूरा responsibility था that was taken care by her father, the character B. So यहाँ पे अगर हम देखें तो only the relation will arise between B and C. B जो है वो debtor माने जाएंगे और C जो है वो creditor माने जाएंगे. A will be out of the contract as well. A जो है वो कहीं पे भी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे. वी डू हैव डिफरेंट एग्जांपल्स एज वेल. जैसे कि एक बॉस जो है अपने एम्प्लॉय को एक शॉप पे भेजता है टू बाय पर्टिकुलर थिंग्स जो स्टेशनरीज हैं लाइक विच आर यूजफुल इन द शॉप. तो जैसे ये एम्प्लॉय सेलर के पास पहुंचता है, द सेलर हैज अ कन्वर्सेशन विद हिज बॉस. एम्प्लॉय के बॉस से बात करता है एंड यहाँ पे अगर हम देखें जो बॉस होगा एम्प्लॉय का वो स्टेशनरी जो सेलर है उसको बोल देगा कि वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू बाय आप उसको दे दो एंड आई वुड बी पेइंग द अमाउंट मैं पे करूंगा. सो इन दिस केस जो एम्प्लॉय था the person was sent by the boss, he will be eliminated. वो कहीं पे भी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा. the total amount will be paid by his boss only. so ये इंडेमनिटी है. हमने बहुत ज्यादा केसेस में अगर हम देखा हुआ है कि कोई छोटा बच्चा जो होता है वो कोई भी शॉप से चीज खरीदता है तो दैट अमाउंट इज लिटरली पेड बाय द फादर या जो भी उसके गार्डियंस होते हैं वो पे करते हैं. तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक तरीके का इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है. नाउ लेट अस सी द डिफरेंस ऑफ गारंटी. तो एक चीज आपको याद रखना है, जो गारंटी है यहाँ पे द पर्सन हु इज टेकिंग गारंटी दैट इज नॉट कॉल्ड गारंटर इन लॉ लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड श्योरिटी. तो हम पहले डिफाइन देख लेते हैं. Contract of guarantee is a contract between three people where the third person intervenes to pay the debt if the debtor is at the default in paying. तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस आप ये देखो कि इंडेमनिटी में देयर वर ओनली टू पार्टीज, दो लोग ही जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे. हियर गारंटी में देयर आर थ्री डिफरेंट पीपल इन्वॉल्व. दूसरा, जो थर्ड पर्सन होगा वो तभी इंटरवेंस करेगा, तभी अमाउंट पे करेगा अगर जो प्रिंसिपल डेब्टर है, जो प्रिंसिपल डेब्टर अगर वो पे नहीं कर पाता है, इफ ही बिकम्स डिफॉल्टर, अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इन दैट केस इज ओनली द पर्सन हु इज टेकिंग गारंटी, like that person is called surety, that person would pay. So let's have an example. A wants to borrow rupees 5,000 from B. ये A character जो है he is borrowing money from the B. ठीक है. सो नाउ बी तो है वो विदाउट कोलेट्रल या विदाउट गारंटी तो इसका अमाउंट देगा नहीं. सो एंड सी इज गिविंग गारंटी टू बी. सी जो है ये कैरेक्टर दैट इज गिविंग गारंटी टू बी दैट इफ ए अनेबल्स टू पे, अगर ए पे नहीं कर पाया आई विल पे हियर. ठीक है, तो मैं पे करूंगा. तो यहाँ पे एक चीज समझो, देयर इज अ कंडीशन
कि भाई अगर ए डिफॉल्ट हो गया, ए जो है वो पे नहीं कर पाता है, तो इन दैट केस ओनली जो श्योरिटी होगा वो पे करेगा, उसके अलावा पे नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बिकम्स अ प्रिंसिपल डेप्टर, पहले इसको पे करना है, और फॉर सम सर्कमस्टेंसेस अगर ये फ्यूचर में पे नहीं कर पाता है तो देन ओनली टेकन केयर बाय दैट, ओनली पेड बाय द सी। तो यहाँ पे ए जो है वो दैट बिकम्स प्रिंसिपल डेप्टर, एंड द लायबिलिटी ऑफ सी अराइजेस व्हेन ए डू नॉट पे। सी का लायबिलिटी तभी अराइज होगा जब ए जो है वो पे नहीं कर पाएगा, अदरवाइज गारंटी या जो श्योरिटी पर्सन है उसका लायबिलिटी अराइज नहीं होगा until and unless the principal debtor becomes defaulter. Now, let us see what are the characteristics and what are the essential elements for the indemnity and guarantee. Now, essential elements क्या होते हैं, characteristics क्या होता है? So, while making any contract, whether it is indemnity or guarantee, we need to make sure we need to follow few of the things. जैसे कि पहला, this contract can be written और oral as well. जैसे कि हम ये दो example देखते हैं, यहाँ पे जो indemnity था वो ओरली किया गया था बी और सी के बीच में, गारंटी जो था अगेन दैट वाज ओरली बिटवीन बी एंड सी के बीच में, ये ओरल कन्वर्सेशन था, but that can be done in written as well. So mostly the corporate field, the people always prefer to have written communication for the better perspective. Second, must have the lawful consideration. Now lawful consideration क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज which is against the law should not be there. कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, whether it is indemnity or guarantee, you need to make sure कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, that should not be against the law. जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, buying mobile phone is not against the law. सेकेंड, बोरोइंग मनी इज नॉट इवन अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। बट कोई भी ऐसी चीज जैसे कि लाइक सेलिंग लिकर उसके पीछे लॉस आने वाला होगा तो दैट पर्सन वुड टेक केयर, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज सेलिंग लिकर इन सम ऑफ द स्टेट्स लाइक गुजरात, दैट इज कंसिडर्ड एज ए इलीगल। थर्ड, द अमाउंट एंड पर्पस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर। जो अमाउंट होगा एंड जो पर्पस होगा दैट शुड बी वेरी क्लियर। जैसे कि हम इंडेमनिटी वाले एग्जांपल में लेते हैं, द अमाउंट वाज 5000 रुपीज, दैट वाज वेरी क्लियर। सेकेंडली, जो पर्पस था, पर्पस वाज टू बाय द फोन, ठीक है, दैट वाज वेरी क्लियर। गारंटी के एग्जांपल में देखते हैं, द अमाउंट वाज अगेन वेरी क्लियर, 5000 रुपीज द सेम अमाउंट, एंड सेकेंडली द कंडीशन वाज मेड इफ ए अनेबल्स टू पे, पर्पस भी क्लियर था। तो जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल एलिमेंट होगा, amount and purpose for the contract must be clear. There are two parties in indemnity, however there are three parties in guarantee. indemnity में जो है वो दो parties involved रहती हैं, जो पर्सन, जैसे कि यहाँ पे इंडेमनिटी के एग्जांपल में हमने देखा, जो ए था, द कैरेक्टर ए, she is out of the contract because she is not going to pay anything even in future as well. But here guarantee में जो है there are three different person, three different people are involved in it. I hope the concept is very clear. Even though if you have any doubt, let me know. Just comment below. I would be replying as soon as possible, and I would be uploading the whole playlist for the business law. So stay safe. Kindly subscribe my channel, comment, like, and stay safe. Have a great day.